Hello students, myself Lohit Jindal and I welcome you all in our next session of INMO flashback session guys. So guys, in this series of INMO flashback, we are solving previous year INMO questions. In each video, we are solving one question at a time, right? So guys, so far we have solved INMO 2000, 2001, 2, 3, 4 up to 6. So 7 years के papers हम already completely solve कर चुके हैं. So you can have a look at those questions already posted on the channel. So from INMO 2000 to 2006, okay, 7 years के हो गए. And currently, right now we are solving INMO 2007. And so far also we have solved the first two questions of INMO 2007. So in the next video, in today's video, we are going to solve the third question of INMO 2007, right? So guys, before proceeding, let me introduce myself. My name is Lohit Jindal. I've done my BTech from IIT Bombay and I've been teaching for Mathematics Olympiad since graduating since past 9+ years. So for various competition exams like IIT JEE, Maths Olympiads and KVPY, right? Okay. So guys, I'm going to show you the question. So after seeing the question, having a look at it, please try to solve the question by yourself first. ठीक है? तो मैं आपको question पहले दिखा रहा हूँ. Okay, please try to attempt this question by yourself. I've said this thing now multiple times. Please try to attempt it by yourself because अगर आप अच्छे से इसको अटेम्प्ट करोगे 1-1.5 घंटा 2 घंटे इसको दोगे क्वेश्चन को पहले, फिर अगर आप उसका वीडियो देखोगे देन विल बी एप्रिशिएटेड मच मोर एंड आपको बहुत अच्छे से बेटर समझ में आएगा भी. ओके, सो ऑलराइट गाइस, लेट अस सी दिस क्वेश्चन. आई होप सबने ट्राई कर लिया इसको नाउ, गिवन इट अ गुड अटेम्प्ट. आप पॉज करके अटेम्प्ट करो उसको आराम से, ठीक है. नाउ आई होप एवरीबडी हैज सॉल्व्ड इट, ट्राइड इट एटलीस्ट, अटेम्प्ट कर लिया है. नाउ लेट्स अस डिस्कस दिस. सो लेट m and n बी पॉजिटिव इंटीजर्स. m और n पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. ओके, m and n are positive integers such that the equation quadratic दिया हुआ आपको x square minus mx plus n has real roots alpha and beta, right? तो guys सबसे पहले हमें क्या पता है जो लिख ही लेते हैं. alpha plus beta is m and alpha into beta is equal to n, right? ये हमें सबसे पहले पता है, sum of roots and product of roots. तो guys सबसे पहले कुछ conclusions यहीं से draw कर लेते हैं पहले. Since m is positive, मतलब sum of roots भी positive है and product भी positive है, right? Doesn't this imply that alpha and beta are both positive, right? Positive तो होंगे, है ना, क्योंकि alpha plus beta sum of roots is also positive, product भी positive है ना. तो दोनों नंबर्स को पॉजिटिव ही होना पड़ेगा, दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते बिकॉज देन सम नेगेटिव हो जाएगा. ऑपोजिट साइन के भी नहीं हो सकते, प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा, राइट? सो दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी, अल्फा बीटा बोथ हैव टू बी पॉजिटिव. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. प्रूव क्या करना है? What we have to prove is, prove that alpha and beta are integers if and only if greatest integer of m alpha plus greatest integer of m beta is the square of an integer. So guys, यहाँ पे ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे if and only if लिखा है, मतलब क्या है उसका कि we will have to prove vice versa, right? कि अल्फा और बीटा इंटीजर मान के हम प्रूव कर देंगे कि वो स्क्वायर आ रहा है इंटीजर्स का, बट उल्टा भी करना पड़ेगा. दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एम अल्फा प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एम बीटा, इफ इट इज अ होल स्क्वायर देन अल्फा एंड बीटा आर आल्सो स्क्वायर्स, इंटीजर, सॉरी, राइट? ऑलराइट गाइस, लेट्स सी. पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं. लेट अल्फा एंड बीटा बी इंटीजर्स. पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे वैसे, है ना. In that case, they will be positive integers. So in that case, guys, what is m alpha? m alpha का greatest integer क्या हो जाएगा उस केस के अंदर? Okay, let us put the value. Okay, sorry guys. Okay, m alpha का greatest integer की वैल्यू क्या होगी? m को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं अल्फा प्लस बीटा, ओके, टाइम्स अल्फा लिखा हुआ है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बन गया, राइट? सो व्हाट इज इट? इट विल बिकम अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा का ग्रेटेस्ट इंटीजर. सो गाइस, अल्फा बीटा इज n, इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा स्क्वायर प्लस n का ग्रेटेस्ट इंटीजर, राइट? सो सिंस n इज इंटीजर, इट कैन कम आउटसाइड, राइट? अल्फा स्क्वायर प्लस n ही आ जाएगा ये तो, राइट? इफ m इज इंटीजर, अल्फा इज इंटीजर, तो वैसे तो इसको आप m अल्फा ही लिख सकते हो, सिंपल. I'll change it, okay, but it will be better अगर आप ऐसे लिख देते हैं. So it will be equal to alpha square plus n only, ठीक है.
ऐसे ही बीटा स्क्वायर प्लस एन भी आ जाएगा. ओके, सो व्हाट इज दिस वैल्यू? एम अल्फा प्लस एम बीटा, राइट. सो गाइज आप देख सकते हो अल्फा स्क्वायर प्लस एन, सेकेंड वाले से बीटा स्क्वायर प्लस एन आ जाएगा. सो विल हैव अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2n, राइट. नाउ n इज अल्फा बीटा, सो हम अवॉइड कर सकते थे सीधा सीधा ही लिखने से. सो 2 अल्फा बीटा आ जाएगा, है ना. 2n को मैं लिख रहा हूँ अल्फा बीटा. सो दैट कम्स एज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर. वैसे डायरेक्टली लिख सकते थे, आई हैव काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड इट, ठीक है, नो नीड. ठीक है, तो ठीक है, दोबारा समझते हैं. एम अल्फा प्लस एम बीटा को लिख रहे हैं हम. एम अल्फा को आप क्या लिखोगे? देखो एम इंटीजर है, अल्फा इंटीजर है. आइडियली इट शुड बी एम अल्फा, ओके, अदर वे अराउंड. मैं दोबारा तरीके से बता देता हूँ. बिकॉज एम एंड अल्फा बोथ आर इंटीजर्स, एम अल्फा प्लस एम बीटा बन जाएगा, राइट. यू कैन टेक एम कॉमन, अल्फा प्लस बीटा. सो एम की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा लिख लो, या फिर अल्फा प्लस बीटा को एम लिख लो, एम इंटीजर, एम स्क्वायर आ जाएगा, राइट. दैट एम अल्फा, दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एम अल्फा प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एम बीटा विल बी इक्वल टू एम स्क्वायर. तो वो तो जस्टिफाइड है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है. तो ये वाला पार्ट तो हो गया. अगर अल्फा बीटा इंटीजर है तब क्या होगा. बट व्हाट इफ गोइंग द अदर वे अराउंड? नाउ वी नो वी हैव टू स्टार्ट विद इट द अदर केस. नाउ एम अल्फा प्लस एम बीटा इज परफेक्ट स्क्वायर, इज स्क्वायर, राइट. हमें ये पता है इस पार्ट केस में स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर. अगर अब इस कंडीशन के साथ हमें वर्क करना है, राइट. अब इस कंडीशन के साथ वर्क करना है अपने को. सो एम अल्फा का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस एम बीटा का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है. तो वैसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी यूज करते हैं. देखो हम सीधा सीधा इसके साथ अलजेब्रा को सॉल्व नहीं कर सकते ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ, राइट. सो फॉर दिस थिंग वी नीड टू नो वन थिंग, दैट x माइनस 1 इज लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x. जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x का होता है वो x माइनस 1 से बड़ा होगा, राइट. x से छोटा होता है ना, लेकिन x से लेस देन इक्वल टू x होता है, राइट. आई होप दिस थिंग इज क्लियर. ये कंडीशन का ध्यान रहना चाहिए आपको. सो दैट x माइनस 1 इज लेसर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर x एंड लेसर देन इक्वल टू x, राइट. सो गाइस इसके अकॉर्डिंगली मैं क्या लिखूंगा? दो है ना, ऐसी दो इनइक्वालिटीज को ऐड कर लेंगे. मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ. एम अल्फा का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा दैट शुड बी लेस देन एम अल्फा माइनस 1 एंड लेस देन इक्वल टू एम अल्फा, राइट. सिमिलरली एम बीटा का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा that will be greater than m beta minus 1 and less than equal to m beta, right. So now we can simply add these two inequalities and what would we get? M alpha plus m beta minus 2 less than greatest integer of m alpha plus m beta, right, less than equal to m alpha plus m beta. I hope it is clear. इन दोनों को add कर रहे हैं, right. We are adding these two and this is what we get. So guys यहाँ पे इसको थोड़ा जस्ट सिंप्लीफाई करते हैं. m times alpha plus beta that becomes m square minus 2, right. लेफ्ट हैंड साइड क्या बन रहा है यहाँ पे? m times alpha plus beta, है ना. हमने अभी देखा m plus times alpha plus beta is m square. So let me change it directly now. तो यहाँ पे स्टेप पे सीधा ही लिख देता हूँ. This quantity will become m square. So m square minus 2 is less than greatest integer of m alpha plus greatest integer of m beta lesser than equal to, again, m alpha plus m beta is m square. ठीक है गाइस, इसका पर्पस क्या है? देखो हमने ये तो मान लिया, हम दूसरे केस को लेके निकल पड़े हैं दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ m alpha plus greatest integer of m beta is square. लेकिन किसका स्क्वायर? ऐसी थोड़ी रैंडम कोई भी वैल्यू स्क्वायर की डाल देंगे, राइट. हमने ये प्रूव करना है कि अल्फा एंड बीटा इंटीजर आएंगे इफ एंड ओनली इफ इट इज द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर. तो वो कौन सा इंटीजर का स्क्वायर होगा वो तो ढूंढना पड़ेगा ना, बाय अप्लाइंग द प्रॉपर्टी. ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी ग्रेटेस्ट इंटीजर की हमने अप्लाई की, उससे हमें क्या मिल रहा है? दैट द सम जिसके बारे में हम बात कर रहे थे दैट इज लाइंग बिटवीन m स्क्वायर माइनस 2 एंड m स्क्वायर. ठीक है, दो स्क्वायर्स हैं, मतलब m स्क्वायर और उसके स्क्वायर का -2 के बीच में है. सो गाइस वन थिंग, नाउ आइदर m इज इक्वल टू 1. अब एक बात सोचो, फॉर m ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यहाँ पे अभी इसको डिस्कस करते हैं. फॉर m ग्रेटर देन इक्वल टू 2 क्या होगा?
एम स्क्वायर एंड एम स्क्वायर माइनस 2 के बीच में तो कोई इंटीजर होगा ही नहीं ना. फॉर m greater than equal to 2 there is no square between, oh sorry guys, so there is no square, there is no perfect square between m square minus 2 and m square. ये बात तो क्लियर है ना, क्योंकि डिफरेंसेस ऑफ दो होल स्क्वायर्स का जो डिफरेंस है वो 2 से बड़ा हो जाएगा व्हेन m is greater than 2. ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए दो जो डिफरेंस है m स्क्वायर और m स्क्वायर माइनस 2 में 2 का है, बट वी नो बिटवीन टू कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स वो डिफरेंस जो होगा बड़ा हो जाएगा. ठीक है, तो m स्क्वायर और m स्क्वायर माइनस 2 के बीच में कोई परफेक्ट स्क्वायर आएगा ही नहीं, राइट, फॉर m ग्रेटर देन इक्वल टू 2. तो क्या बात बनी, क्या केस बचे हमारे पास. सो ईदर विल हैव टू केसेस नाउ. फर्स्ट केस इज ईदर m इज इक्वल टू 1, या तो m इक्वल टू 1 हो जाए, है ना, उस पर भी डिस्कस करते हैं. या फिर सेकंड केस क्या होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ m अल्फा प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ m बीटा m स्क्वायर ही हो जाए, क्योंकि उसके साथ इक्वालिटी हो सकती है, अदरवाइज कोई और स्क्वायर तो हो नहीं सकता वो, राइट. सो गाइस लेट अस डिस्कस दीज टू केसेस. ओके, लेट मी स्क्रॉल डाउन. तो गाइस अब एक बात ये देखो, जो m इक्वल टू 1 का केस है, इफ यू थिंक अबाउट द m इक्वल टू 1 केस, अगर m 1 हो गया, इफ m इज 1, then what does it mean? That alpha plus beta is 1, right? And alpha beta, okay, let me correct, alpha plus beta is 1, m की वैल्यू 1 है, and alpha beta की वैल्यू n है. मतलब आप ये सोचो, दो पॉजिटिव नंबर्स, अल्फा बीटा हमने पहले डिस्कस किया क्योंकि पॉजिटिव है, दो पॉजिटिव नंबर्स का सम 1 है, राइट, एंड उनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव है. n की वैल्यू कम से कम 1 तो है ना, इंटीजर है, वो भी पॉजिटिव इंटीजर है. ऐसे दो नंबर्स जो कि 1 या 1 से छोटे हैं, अल्फा प्लस बीटा 1 है, ऐसा भी नहीं है कोई एक नंबर 0 हो सकता है, वो तो है नहीं, ठीक है, एक रूट 0 तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है. सो क्योंकि फिर n 0 हो जाएगा ना, एक भी रूट 0 नहीं हो सकता क्योंकि फिर n 0 हो जाएगा. एंड अल्फा प्लस बीटा इज 1, मतलब दोनों की वैल्यू, दोनों अल्फा बीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, राइट, बोथ अल्फा एंड बीटा लेस बिटवीन 0 एंड 1. सो हाउ कैन देयर प्रोडक्ट बी इक्वल टू एन इंटीजर, वो हो नहीं सकता, राइट, दैट कैन नॉट हैपन. So this case is not possible. करेक्ट, ये पॉसिबल ही नहीं है ये वाला केस तो. ठीक, अब आते हैं सेकंड केस पे, जो अपना एक्चुअल केस है. तो हमने होल स्क्वायर तो प्रूव कर दिया कि अगर m ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ m अल्फा प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ m बीटा, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है वो, तो वो परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, m स्क्वायर होगी, नो डाउट अबाउट इट, राइट, वो m स्क्वायर होगा. सो लेट अस थिंक अबाउट इट. नाउ दिस इज m स्क्वायर, ठीक है. अब क्या करते हैं इसको, अब हम देखते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m अल्फा. नाउ लेट अस थिंक अबाउट इट. ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ m अल्फा, जो हमने यहाँ पे लिखा था गाइस, देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ m अल्फा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा टाइम्स अल्फा, ठीक है. तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा आ गया, ठीक है. सो अब यहां तक आते हैं. सो आई विल राइट m अल्फा का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू सेम थिंग, अल्फा स्क्वायर प्लस n तक तो सबको क्लियर है कि अल्फा स्क्वायर प्लस n तक आ गया. बट दिस टाइम अराउंड वी डोंट नो कि अल्फा स्क्वायर इंटीजर है कि नहीं, वी डोंट नो दैट येट, बट n पता है इंटीजर है. सो आई कैन राइट दिस थिंग डाउन नाउ. वो जो इंटीजर है उसको बाहर निकाल सकता हूँ. सो आई विल राइट दिस थिंग एज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस n. ये लॉजिक आई होप क्लियर हो गया, क्योंकि n इंटीजर है उसको मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर निकाल सकता हूँ, राइट. आई डोंट नो अबाउट अल्फा स्क्वायर, है ना. So guys, similarly, so what will I say? थोड़ा मैं scroll down कर रहा हूँ. So guys, now m alpha का greatest integer plus m beta का greatest integer. Similar way में अगर आप solve करोगे guys, this will come out alpha square का greatest integer plus n. This will come out to be beta square, दूसरा वाला m beta का जो होगा plus n ही आएगा. आप उसी तरह से solve करोगे, because I'll show you here. m beta का greatest integer is equal to alpha plus beta times beta, so that is beta square plus alpha beta, and alpha beta की वैल्यू कितनी है, n डाल दूंगा. So that is how we can get to this. So this will be equal to beta square greatest integer plus n. ठीक है, सेम लॉजिक. तो ये आ गया गाइस, और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी है, m स्क्वायर है. Now let us put the values. m square is equal to greatest integer of alpha square plus greatest integer of beta square प्लस 2 अल्फा बीटा. n की वैल्यू डाल रहा हूं वापस, राइट. और इस m की वैल्यू भी क्या है गाइस, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर है,
राइट, दैट इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर ना। सो गाइस देखो ये अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे है, राइट साइड पे 2 अल्फा बीटा है, वो 2 अल्फा बीटा कैंसिल हो जाएगा व्हेन यू ओपन इट अप। सो लेट अस सी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा is equal to greatest integer of alpha square plus greatest integer of beta square plus 2 alpha beta, right? So what will happen, वो 2 alpha beta cancel हो जाएगा आपका, right? Okay, just a second guys. Alright, so 2 alpha beta आपके पास cancel हो जाएगा. So now guys, you get that alpha square plus beta square is equal to greatest integer of alpha square plus greatest integer of beta square. Now you see guys, we know a number is always greater than equal to its greatest integer. तो alpha square अपने इस नंबर से बड़ा होगा या इक्वल होगा. Similarly बीटा स्क्वायर भी बीटा स्क्वायर के ग्रेटेस्ट इंटीजर या उससे इक्वल होगा या बड़ा होगा. That means left hand side is either greater than or equal to the right hand side. Generally, है ना? आप ये तो बोल सकते हो ना that alpha square should be greater than equal to greatest integer of alpha square. But यहाँ पे तो इक्वल दिया हुआ है दोनों का सम. That implies both alpha square and beta square are integers. यहाँ तक तो हम आ गए हैं. Right? We are able to prove up to now that alpha square and beta square are integers. अभी alpha beta को integer prove करना बाकी है, but so far we have been able to prove that alpha square and beta square are integers from this thing, right? क्योंकि alpha square is greater than equal to greatest integer of alpha square, beta square is greater than equal to greatest integer of beta square generally, ठीक है? So they are equal in only the case when the number is integer itself, right? तो यहाँ से आप ये prove कर पाए हो कि alpha square and beta square are integers, ठीक है? Now let us discuss one more thing guys. आगे बढ़ते हैं, ठीक है? Now see guys, alpha square minus beta square ये integer होगा, which can be represented as alpha plus beta into alpha minus beta, which means it is equal to m times alpha minus beta. तो guys alpha minus beta is equal to alpha square minus beta square upon m. So guys we know, हमें क्या क्या पता है, alpha square minus beta square भी integer आएगा, upon m integer से डिवाइड कर रहे हैं, ये भी integer आ गया, तो उनका जो रेशियो है, कैन आई से दिस इज रैशनल, अल्फा माइनस बीटा इज रैशनल, राइट? ये बोल सकता हूं इस बात से, मैं भी फर्दर आगे प्रूव करूंगा. अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इंटीजर्स आ गए, बट ये भी तो हो सकता है कि अल्फा की वैल्यू √7 हो, √3 हो, राइट? हमें वो एक पॉसिबिलिटी हटानी है ना? क्योंकि और किसी नंबर का स्क्वायर तो इंटीजर आएगा नहीं, या तो इंटीजर का ही स्क्वायर इंटीजर आता है ना? या फिर स्क्वायर रूट में अगर हो कोई नंबर, स्क्वायर रूट में मतलब √6 हो, √3 हो, √2 हो, राइट? उनका स्क्वायर इंटीजर आ सकता है. अब वो वाली पॉसिबिलिटीज खत्म कर रहे हैं. दैट मींस अल्फा माइनस बीटा बच्चे विच इज अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इंटीजर है, उनका डिफरेंस भी इंटीजर है, अपॉन m वो भी इंटीजर है. सो तो ये रेशियो तो हो गया रैशनल, राइट? सो अल्फा माइनस बीटा इज रैशनल, अल्फा प्लस बीटा विच इज m इज ऑल्सो रैशनल, ऑल्दो इंटीजर है बट रैशनल ही हो गया, है ना? तो फ्रॉम दिस थिंग आई कैन से both alpha and beta are rational. इसका मतलब वो स्क्वायर रूट वाले टर्म तो है नहीं, अल्फा बीटा रैशनल है, और रैशनल में किसी का स्क्वायर इंटीजर कब आएगा? इट्स ओनली पॉसिबल व्हेन अल्फा एंड बीटा, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन अल्फा एंड बीटा आर बोथ इंटीजर्स, एंड दैट इज द प्रूफ, ठीक है? सो फाइनली हमने प्रूव कर दिया कि अल्फा एंड बीटा क्या आएंगे, दोनों इंटीजर्स आएंगे, राइट? ओके, आई होप इट इज क्लियर. अल्फा एंड बीटा वो दोनों रैशनल आएंगे, वहां तक हम लेके आए, एंड उनके स्क्वायर्स जो हैं वो इंटीजर्स हैं. सो इट्स ओनली पॉसिबल इफ अल्फा एंड बीटा आर बोथ आर आल्सो इंटीजर्स, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है? सो दैट्स इट गाइस, आई होप दिस थिंग इज क्लियर. सबको ये लॉजिक क्लियर हो गया, राइट? सो आई डू होप गाइस सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, समझ में आया, ठीक है? यू कैन हैव अ लुक एट इट अगेन. अगर आपको कोई थोड़ा सा डाउट हो, दोबारा से आप इसका रिप्ले देख सकते हो, राइट? इट्स क्वाइट अ लेंथी इन राइटिंग वे, राइट? तो केस बना के आपको वहां पे समझना पड़ेगा, राइट? सो गाइज आई होप सबको क्लियर हो गया, ये समझ में आया, मजा आया आप लोगों को ये क्वेश्चन करके. सो इफ यू नो
If you like this question, please like this video and subscribe to our channel so आपको regular updates मिलते रहें. Right guys? So we'll see you in the next video. Till then, take care, keep practicing, and all the best guys. So guys, we are launching IOChem Achievers batch. Okay, this is IOChem Achiever batch से हमने नाम दिया है because it can help you achieve your goal of qualifying IOChem. ठीक है, IOChem Achievers is the name of the batch, and it is classes are starting from July 4. So guys, classes are starting from July 4. There are limited seats. Okay, the course will be taken by all three of us: Abhay sir, me, myself, and Chetan sir. So guys, you will get excellent faculty, excellent teaching in there. Okay, in the starting 1 month, I'll be teaching the course. Then Abhay sir will be taking over, and then Chetan sir will be teaching in the last 1 month. As I said, we have designed the course for the 3 months, and after that, we'll not leave you. Don't worry about it. ठीक है, इस 3 months के along भी आपके कोई टेस्ट होते रहेंगे. And after that, in the last 1 month, we'll have a camp in which we'll be helping, giving you a lot of practice of all the type of questions that can come in IOQM. Okay, and a whole lot of tests. Right? I'll tell you more about those details in the coming slides. ठीक है, so that is the name of the batch. And yes, guys, this is actually a paid batch. I'll tell you about the pricing later on. Don't worry. So before that, let me tell you about the IOChem notification first of all, right? जो exam होने वाला है guys, the exam date is basically the 30th October. That is 30th of October. Okay, 30th October को exam होने वाला है. As I said, 4 months पड़े हैं आपके पास. This time the pattern has been changed, guys. Last year तक 30 questions आते थे. This year the pattern is a bit, lesser number of questions are expected. So they have said 24 questions in total. So 24 questions के अंदर guys, 10 questions of 2 marker, 2 mark के 10 question होंगे. So that totals to 20 marks, right? Then 5 marker questions होंगे. Last year तक 3 marker होते थे, वो हटा दिया उन्होंने. Next is 5 marker questions. 12 5 marker questions होंगे guys. This is the most scoring area, and that constitutes of 60% of the exam. 60%. Okay. And 10 marker questions होंगे सिर्फ 2. There will be 2 10 marker questions that comprise of 20% of the paper. 20% of the marks, right? So of course those 10 marks are going to be difficult guys. So suggesting guys, सही में बताऊं तो क्या करना चाहिए? What should be your approach for the exam? Exam के लिए भी थोड़ा सा बता देता हूं. You should focus in the starting for the new students at least, है ना? मैं नए students के लिए बात कर रहा हूं guys. You should be more or less focused because guys 10 marker questions I don't want to be unrealistic. ठीक है, अगर आप बिल्कुल पहली बार कर रहे हो, but I'm not saying कि कर नहीं सकते हो 10 marker. What I'm trying to tell you is the level of priority. ठीक है, priority किसको देनी चाहिए according to me. See guys, 20 marks is again announced by them that 20% marks will will lead you to certificate. That they will give you the IOQM qualifying certificate for 20% marks if you score 20% or higher. ठीक है, and for writing INMO, that depends upon your region. है ना, all those things are given on the site. You can have a look at them. For her region के top 25-30 students वो pick करेंगे. Okay, so the cutoff is different for different states, but I would say getting 40 marks, 40 plus marks. Generally बोल रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ. काफी states में कम भी जाएगा बहुत. हो सकता है 20 से भी कम चला जाए. But I am just suggesting from my end that if you target for 40 plus or 35 plus marks, 35 to 40 plus marks, ठीक है, let me edit this. So 35 to 40 plus marks, you should be most probably you should be able to qualify for INMO, right? तो guys ये 35 से 40 plus marks कैसे लेके आने हैं आपको? Even if you are trying for the first time, you are a new student. Guys, you focus on these 20 marks. है ना? I would suggest you focus or you aim for 20 में से कितने लेके आने की कोशिश करनी चाहिए आपको? I'll tell you. 2 marker जो आपको करने चाहिए. Okay, let me write it on this side. So guys, 2 marker आप कितने सॉल्व करने चाहिए? मैं ये नहीं बोल रहा हूं 10 में से आप एटलीस्ट 8 करो, एटलीस्ट 8 which will amount to 16 marks. ठीक है, which would amount to 16 marks, and then at least solve 5 markers. Guys 12 5 marker हैं. I would suggest at least इतना प्रैक्टिस कर लो, इतना सॉल्विंग कर लो that you can solve at least 5, है ना, 4 to 5 questions. 4 to 5 questions करने का मतलब है guys 20 to 25 marks, है ना. And now you can simply addition सबको आती है, right?
So 16 marks ये वाले, 20 to 25 marks ये वाले, adding them, you'll get 36 to 41 marks, right? As I said, that is the range. ये guys minimum है, like मैं आपको optimized form में बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इतने ही आएंगे, ठीक है? If you, मतलब अगर आप जी जान लगा के मेहनत करोगे, you can of course score more than this, but I'm just telling you कि bare minimum क्या कर सकते हो, right? And that is very smartly done. मतलब आपको 12 में से 4 से 5 क्वेश्चन सोचना है. पेपर के अंदर जब जाओगे, you know your strengths and weaknesses. You can pick up, pinpoint and pick up the questions. हैंड पिक करो वो क्वेश्चंस को जो करने हैं. जैसे 2 मार्कर्स इजी होते हैं तो वो वाले आप पिक कर सकते हो. देन 5 मार्कर कैसे कैसे करने हैं. You can actually assure कि फर्स्ट 1.5 hour या 2 hours के अंदर आप इतना स्कोर कर लो. So that you'll get relaxed and then you can solve the further questions as well. ठीक है? This is just a strategy. ठीक है? अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हो, पुराने पढ़ते आ रहे हो, देन यू कैन ऑफ कोर्स देन मूव ऑन टू द 10 मार्कर्स. सो गाइस, बट मैं आपको ये बताना चाहूंगा, यू शुड ऑलवेज प्रायोरिटाइज. इजी क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए, तो इजी से स्टार्ट करो. इजी क्वेश्चन धड़ाधड़ खत्म करते जाओ एग्जाम के अंदर. 2 मार्कर्स, देन 5 मार्कर्स, देन कम टू द 10 मार्कर्स इफ टाइम इज लेफ्ट. ओके, बट तो वो बहुत जरूरी है. ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड हाउ टू प्रायोरिटाइज. ओके, सो दैट इज इट अबाउट द एग्जाम गाइस. एग्जाम कैसे होने वाला है ये मैंने बता दिया आपको. 2 मार्कर, 5 मार्कर एंड 10 मार्कर आने वाले हैं. सो देयर आर टोटल ऑफ 24 क्वेश्चंस दिस टाइम. सो 6 क्वेश्चंस कम हो गए हैं. यू गेट मोर टाइम, राइट? एंड दैट टाइम, एज आई सेड, यू कैन स्पेंड ऑन 2 मार्कर एंड 5 मार्कर एफिशिएंटली, एटलीस्ट बिफोर गोइंग टू द 10 मार्कर्स. ठीक है, विल बी ऑल्सो स्टार्टिंग विद द सीरीज ऑफ 10 मार्कर क्वेश्चंस एज वेल. ठीक है, तो वो आप यूट्यूब पे देख सकते हो एवरी वीक, है ना? तो उससे भी आपको थोड़ा आइडिया लगता रहेगा किस तरह के 10 मार्कर क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड इन आईक्यू. ओके, दैट यू कैन गेट एन आइडिया. ओके, सो गाइज, बाय डूइंग दीज कोर्सेज ओनली इन द लास्ट ईयर वी हैड अ ट्रेमेंडस रिजल्ट, है ना? बहुत अच्छा रिजल्ट रहा था लास्ट ईयर. वी हैड टोटल ऑफ 798 ऑफ अवर स्टूडेंट्स गेटिंग IUQM सर्टिफिकेट्स, गेटिंग क्वालिफाइड थ्रू IUQM. जो मैंने आपको बताया 20% मार्क्स उन्होंने स्कोर किए थे, राइट? एंड आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट इज लाइक हमारे पास जितने स्टूडेंट्स थे 1600 समथिंग ऑफ अवर स्टूडेंट्स गेव द एग्जाम, राइट? रोट द एग्जाम. सो बेसिकली एवरी 1 out of 2 स्टूडेंट ऑफ अवर्स गॉट सर्टिफिकेट इन IUQM, राइट? मतलब हर 2 में से एक स्टूडेंट सर्टिफिकेट लेके आ पा रहे एटलीस्ट, राइट? एंड वी थिंक दैट इज अ बिग थिंग एंड वी आर हैप्पी विद दैट एंड वी लाइक टू कंटिन्यू विद दीज थिंग्स. ज्यादा बेटर करना चाहेंगे हम उस रेशो को, राइट? एंड देन गाइज 46 ऑफ अवर स्टूडेंट्स got qualified for INMO out of a total of 450 students. 450 students got qualified for writing INMO and 46 of them were our students. So we had 10% of our students, you can say 10% of the total selected students were from Vedantu Olympiad School, right? So, and out of those 46 guys, 5 students were selected for INMO. They qualified INMO. Unfortunately, they were not selected for the camp, which are basically the top 5 students, है ना? But yes, 5 of them did qualify for qualified INMO, which is like 5 out of 45 students, guys. These were 5 out of 45 students. So that is again a big deal. 10% of the students were from Vedantu Olympiad School. And guys, there was one student, okay, of Nepal actually, who was watching our videos on YouTube and all. He got selected for the International Mathematics Olympiad from Nepal, representing Nepal. Okay. So that is a big thing. Big round of applause for him actually, because he got selected for the International Maths Olympiad and representing Nepal. And I'm glad we were able to help him, right? Even though he is from Nepal. So that is all we would like, right? To help students, right? मतलब so to realize their dreams if they are interested in maths, उसके अंदर वो अपना गोल achieve कर सकें, right? Okay. So that was about the result, guys. Now let me tell you about the course as I was telling you. So guys, course के अंदर क्या क्या है? There are 40 plus live lectures, as I said, guys. 40 plus live lectures in 3 months के around, जो हमने पूरा course design किया हुआ है, right? As I said, and all the topics that I mentioned will be covered in those lectures. Okay, these lectures are 90 minutes each, guys. These will be 3 days in a week. Okay, let me tell you, these are 3 days a week. Okay, 3 days a week classes होंगे आपके. Timings will be 6:30 PM to 8 PM. So you'll have 1.5 hours every alternate day. So why we have kept it alternate day, guys? The point is to not burden you with the theory only. The point is to give you time to self-study and solve questions before coming to the next session, right? Which will help you a lot in the learning process. उसके बाद आप अलग ही level पे पहुंच जाओगे. By the end of the course, you will feel actually the difference
between your level before the starting the course and after completing the course. That I guarantee you that you will feel the difference in your own level, right? So guys, during those 3 months जो मैं आपको बता रहा हूँ, जुलाई अगस्त सितंबर के अंदर ये लेक्चर्स होंगे, 10 पार्ट टेस्ट होंगे, जो भी क्वेश्चन जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसका टेस्ट लिया जाएगा. आफ्टर दैट देयर विल बी 10 पार्ट टेस्ट्स, okay, on the new pattern. Mind you, that will be on the new pattern with 24 questions, and tests will also give you the video solutions of each and every questions of the tests. Okay, and guys, then after that, after July, after August, in September, basically in the last 1 month of October, you'll get 10 full tests as well. Before the IOChem, you'll give 10 full tests completely. Okay, guys, you will be added to our Telegram doubt solving groups. Okay, after the enrollment in our course. So in that group, guys, you can post your doubts and we'll try to we'll answer those doubts within 24 hours. Okay, by the next day you'll get your doubts resolved. Okay, so doubt solving is as much important, because आप solve कर रहे हो, आप चीजें कर रहे हो तो doubts आएंगे, and solving the doubts will help you move further quickly. And guys, जो भी हम आपको assignment देंगे, as I said, this course is a full-fledged course को जो आपको complete मिलेगा. It will help you in every way. आपको कोई और चीज करने की जरूरत नहीं है, कोई चीज और ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है. ओके, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू. असाइनमेंट्स होंगे, टेस्ट होगा, क्लासेस होंगी. करेक्ट. सो गाइज, जो असाइनमेंट आपको दिए जाएंगे, वी हैव प्रिपेयर्ड द वीडियो सोल्यूशंस एज वेल, कि अगर आपको रिटन सोल्यूशन देख के समझ नहीं आ रहा है, यू कैन रेफर टू द वीडियो सोल्यूशन एज वेल. ओके, वी हैव प्रिपेयर्ड द रेपोजिटरी ऑफ द वीडियो सोल्यूशंस एज वेल, तो वो भी आपको शेयर कर दी जाएगी. Okay, and you'll get the assignments, as I said, for every topic and every chapter you'll get a assignment. Okay, that we'll have to solve. And other than that, guys, we will provide you with 15 plus additional recorded revision lectures जो दूसरे batches जो old students के लिए हो रहे होंगे, because they will be getting their revision along the way. जब आपका course चल रहा होगा, उनकी revision चल रही होगी. So this is so that it can help you in the revision portion as well, in case you're getting टाइम, राइट. इन द मंथ ऑफ अक्टूबर यू कैन यूज दैट टाइम. ठीक है, अक्टूबर के अंदर आप इस रिवीजन लेक्चर्स के थ्रू भी जा सकते हो एंड सॉल्व मोर क्वेश्चन, गेट मोर प्रैक्टिस. ओके, ऐसा नहीं है कि उसके टाइम पे वैसे हम आपको छोड़ देंगे. विल हैव दैट कैंप इन विच विल बी कवरिंग 2 marker, 5 marker एंड 10 marker क्वेश्चंस. ओके, बट अदर देन दैट, इफ यू वांट टू हैव सम रिवीजन आल्सो अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज और समथिंग, you can refer to those 15 plus recorded lectures as well. Okay, so all these things will be provided to you in that IOChem Achievers batch. Okay, and the last thing, guys, coming to the pricing, right, as I said, so guys, right now the course is priced at 6,666 rupees. The course actual price is 10,000. So right now the course pricing is 6,666 rupees. And guys, if you apply this coupon code LJ Pro, that link you can get in the description. अगर आप apply करते हो coupon code, you'll get an instant 10% discount. And the course price will be reduced to 6,000 rupees. You can buy this course for 6,000 rupees. So guys, duration is 4 months. I will just say, guys, मतलब आप लोग, I will just generally, don't think of this as a pricing which is very high. I would suggest, guys, even the students in the local tuitions pay 2,000 to 3,000 rupees for the local tuition, where you don't get anything like that, right? And we have designed this course with, so much hard work. We have prepared this course. कि we do think that this will do you justice, and आपको बहुत ज़्यादा help होगी and बहुत ज़्यादा फायदा होगा इस कोर्स को करने का. It will help you achieve so many things for IOQM, right? आपका मैथमेटिक्स इतना अच्छा हो जाएगा, आपकी लॉजिकल रीजनिंग उससे बहुत अच्छी हो जाएगी. So this thing will be nothing in regard to that, right? And this will give you that much value. I will rather say 6,000 rupees आप अगर पे कर रहे हो ना, you will actually get much more value than this money in this course. ठीक है. सो गाइज, आई होप आप लोगों को अगर ये कोर्स करना है, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस कोर्स, प्लीज गो फॉर इट. आपको बहुत फायदा होगा. बट येस गाइज, इन दिस कोर्स आई रिक्वेस्ट वन थिंग. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेसिक से ये कोर्स जाएगा, बिकॉज देयर आर 3 months ओनली, 3 or 4 months. ठीक है, दिस कोर्स विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स. कुछ चीजें आपको आनी चाहिए, लाइक द बेसिक्स ऑफ क्लास 8, 9, 10th मैथ्स. बेसिक्स आने चाहिए क्लास 9, 10th मैथ्स तक के. बट अदर देन दैट विल टेक इट अप. ठीक है, नंबर थ्योरी के लिए कोई ज्यादा चीजें रिक्वायर्ड नहीं है, हम बेसिक से पढ़ाएंगे क्योंकि वो टॉपिक कहीं होता नहीं है. ठीक है, बट ज्योमेट्री विल होप कि आप थोड़ा सा पढ़ के आओ, आपको आती हैं वो चीजें, बेसिक्स आते हो आपको ज्योमेट्री के. ठीक है, ऑलराइट. सो द टॉपिक्स विच आर नॉट देयर इन 9th and 10th class maths, those topics will start from the very basics.
बट द अदर टॉपिक्स यूड लाइक, अगर आपको थोड़ा बहुत आता हो, ठीक है, थोड़ी चीजें आपको आती हो 9th 10th मैथ्स की, बिकॉज दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द कोर्स मच बेटर. ओके, ऑलराइट गाइज, आई होप सबको फायदा होगा. ओके, एंड आई होप आप सबको ऊपर जो मैंने पहले आपको बताया कि 44 मंथ्स का आप यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हो, आई होप इट विल हेल्प यू गाइज इन योर aim of qualifying for IOQM. So that's it from my end, guys. We'll see you in our sessions, if right. Thank you guys. Bye bye, take care.